Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher. Today we are again going back in the second term. So first of all of you, you are coming over here, and we just started our the new term. So first of all, with the best of luck with this unit number next terms is concerned. And second thing is that everyone has enjoyed the vacation, and then after we will start our new session. So everyone be ready for that. And sometimes I'm also very fond of the persons, so you also may be happy at your home. And sometimes I'm also uh, feel that you all are at your home, so you can also some of the portions or topics you maybe refer. And last, whenever we start our session, that is from your S7 examinations, so just we have to conclude before one day. And that's why we have to start this now, whatever the things we have interleaved on that. So almost we have to cover the unit number 3, but one chapter still remain, that is symmetry. So that is our chapter number 13 as per the NCERT basis there. So symmetry, first we have to going thoroughly with this symmetry. First we discussed about the remain portion, that is considered with the SB 17. That is still you have to work the part 1, because of till we have to cover the one unit in this part 1, and then after we will discussed about the unit number 5, that is available in your part 2 book. So till we have used here the part 1, हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारा यूनिट 3 चल रहा है। और आपको पता है कि लास्ट एग्जाम में हमने अंडरस्टैंडिंग्स एलिमेंट्री शेप के बारे में सीख रहे थे, और एलिमेंट्री शेप्स के बारे में हमने जो जहाँ तक भी सीखा था उसकी हमने अभी रिसेंटली और समेटिव असेसमेंट टेस्ट जो हमने लिया, वो फर्स्ट एस7 एग्जामिनेशन दैट वी कंक्लूड, एंड देन आफ्टर we will move on to the next portion. Whatever the remains, just I completed first, and then after we will going on to the unit number 5, isn't it? So first of all, understandings elementary shapes, we till just we conclude the practice question number 6 तक हमने किया था, पेज नंबर 67 तक. So first of all, we starts or we move on this very first session of mathematics with the page number 68, and this is a concept time 16 that is available, and you can also open the supplementary book part 1, and we move on to the page number 68, isn't it? You all are open with this supplementary book. You required to keep all having the pen and book also, because of sometimes I also mentioning the page number, some examples, some numbers of NCERT book, everything. If you have to keep this book, and then you have to mention this all the page number. Okay. So first of all, concept time 16 से हम start कर रहे हैं, 3 dimensional shape. So moved on it with page number 68. The concept time 16 is there. Now this is a 3 dimensional shapes are there. And these 3 dimensional shapes, we have to understood how can we set this 3 dimensional shape. किसको हम 3D shapes बोलते हैं, और 3D shapes क्यों इसको बोला जाता है. So just we have to take it out. First of all, here given that 3 dimensional shape are there. Now some few examples is given here. Solid objects that have 3 dimension. जो भी सॉलिड होता है उसके कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं. 3 डायमेंशन में क्या क्या होता है, लेंथ, मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसकी विड्थ एंड उसकी हाइट.
यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, these are the three dimension of any solid objects, that is called the 3D shape. 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन कौन कौन सी होती है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ मतलब उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई, जब हम गुजराती में बोलते हैं ना लंबाई, लेंथ, विड्थ यानी पौड़ाई, एंड हाइट मतलब ऊंचाई। So length, width and height of any objects, that is called the three dimension, and the D in 3D stands for the dimension. So this is the concepts. Now we are going some uh, many shapes that we have to find out in our everyday session. That is live likes boxes, tools, buildings, footballs, etc. आप देख सकते हो, दिस इज अ कार्डबोर्ड बॉक्स इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड के शेप में है। द गैस सिलेंडर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, एंड द रूफ इन द शेप ऑफ द प्रिज्म, एंड द फुटबॉल इन द शेप ऑफ a sphere. These are the four different pictures is given in this slide, so you can also understand that this is a one kind of shape. अब ये सभी को कोई ना कोई डायमेंशन है, आप देख सकते हो ना कि सपोज पहला ही एग्जांपल हम ले ले तो एक कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है पहला, वो आपको दिख रहा है ना, वो बॉक्स में भी इसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, पर्टिकुलर विड्थ होगी और हाइट भी होगी। इससे हम पता कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सॉलिड पार्ट्स इट इनटू द 3D शेप। सो जस्ट वी हैव टू मूव ऑन इट। अब आप देख सकते हो कि 3D शेप किसको बोला जाता है। आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में भी देख सकते हो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि पेज नंबर 68 में कॉन्सेप्ट टाइम 16 में यहाँ पे आपको बताया गया है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव थ्री डायमेंशन एंड एवरीथिंग इज आल्सो बी डिस्प्लेड हियर। तो आप देख सकते हो कि द फ्लैट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लैट साइड, फ्लैट मतलब उसके ऊपर ये पूरा ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे कि ये बॉक्स है तो बॉक्स को एक साइड के ऊपर हम रख सकते हो, मतलब वो कैसा साइड उसका होता है, फ्लैट साइड। हम फ्लैट साइड के ऊपर रख सकते हो, जितनी भी फ्लैट साइड है किसी भी सॉलिड शेप की उसको हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द फेस। फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्लैट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फेस। नाउ द 3D शेप में और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, that is what do you understand about the edge, the line segment where the faces meet is the defined as an edge। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी लाइन सेगमेंट, आप ब्लू देख रहे हो ना लाइन, वो लाइन है, सभी लाइन। द लाइन सेगमेंट वेयर द फेसिस मीट्स, जहां पे फेस, ये सब पहले हमने देख लिया कि फेस किसको बोलते हैं, फ्लैट साइड को। जहां भी ये फेस मिलते हैं उसी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो ये सब जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं, मतलब लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दैट ऑल आर द एजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर 3D शेप। लास्ट वन इज कंसिडर द वर्टेक्स, ए पॉइंट वेयर द एजेस मीट्स, मतलब जहां पे एज मीट कर रही है, वो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सभी को हम बोलेंगे कॉर्नर ऑफ वर्टेक्स। और आप बोल सकते हैं कि दिस इज ए वन रेक्टेंगुलर क्यूब, तो जहां पे उसका कॉर्नर है वहां के पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स भी बोल सकते हैं और कॉर्नर भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूब है, वो क्यूब का शेप जो है उसके वर्टेक्स, उसके एजेस और उसके फेस के ऊपर डिसाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि हियर कंसीडर एज वन स्पीयर। स्पीयर आप मान लो कि कोई बॉल है आपके पास, बॉल यानी राउंडेड शेप का है। तो स्पीयर हैज वन कर्व्ड फेस, उसको एक कर्व्ड फेस ही है, राउंड है उसके ऊपर। इट हैज नो एजेस, और इसमें कोई एज भी नहीं होती और कोई भी कॉर्नर भी नहीं होता। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें 0 होंगे। नंबर ऑफ फेसेस कितनी है? एक ही है। आप देख सकते हो किसी भी साइड से आपको बॉल को देखो, ये वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का बॉल देखो या कोई भी बॉल, जो आप बॉल एक ही साइड से देखेंगे, मतलब नंबर ऑफ फेसेस इसके 1 ही है। नंबर ऑफ एजेस कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी नहीं है।
सो दैट इज ए स्पीयर। नेक्स्ट वन वी कंसिडर द स्पीयर के बाद का पोर्शन है ए सिलेंडर। अब सिलेंडर को आप देखो तो जैसे हमने बताया ना, गैस का जो रिफिल था वो सिलेंडर, वो किस शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है, जिसको हम गुजराती में नळाकार बोलते हैं। अ सिलेंडर हैज वन कर्व्ड फेस, उसको एक ही कर्व्ड फेस है एंड टू फ्लैट साइड है। आपको पता है कि सिलेंडर को नीचे और ऊपर की तरफ, टॉप और बॉटम की साइड पे दो फ्लैट एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं, और दिस फेसेस मीट एट टू एजेस, ये टू एज को ही मीट करते हैं। सो इट हैज नो वर्टेक्स। सो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हुए, 0 हुए। नंबर ऑफ फेसेस कितने हुए, 3 हुए। नंबर ऑफ फेसेस क्यों 3 हुए, एक टॉप एक बॉटम और एक सर्कुलर कर्व्ड फेस है उसका, इसीलिए 3 हुई। और नंबर ऑफ एजेस क्यों 2 हुई है, क्योंकि ऊपर और नीचे की दो ही एज है उसकी, इसीलिए। तो ये सिलेंडर 3D शेप में कैसे दिखेगा वो भी पता चल जाता है। तो ये जो चीज थी वो कंसेप्ट टाइम 16 में, आज आपको यही चीज मेंशन करनी है। कैसे मेंशन करेंगे आप? So that is one remain concepts that we already studied. Okay, so I hope so that this particular points is very easy. You have to concentrate on it. सभी शेप आपके रूटीन्स लाइफ में जो जो होते हैं उसके सामने आपको देखना है, आपको कंसीडर करना है कि आपके पास क्यूब है तो एक क्यूब की पोजीशन क्या होगी। सपोज मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जो है वो एक मोबाइल है, तो ये मोबाइल जो है वो रेक्टेंगुलर पोजीशन पे, तो रेक्टेंगुलर पोजीशंस की आप देखो तो ये उसकी फेसिस है, फ्लैट फेसिस जिसको हम बोलते हैं ना, ये फ्लैट फेसिस है, ये भी फ्लैट फेसिस है उसकी, ये चीज भी फ्लैट फेसिस के ऊपर कंसीडर होती है ना। तो ये जो होता है ये एज होती है, एज। और ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को हम कंसीडर करें तो ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को हम कंसीडर करें तो वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि विच काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसर्न। तो ऐसे ही आप अपने फ्रीज में भी देख सकते हो कि आइस का क्यूब होता है ना, आइस का क्यूब एक बार निकालो, आइस का क्यूब बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक एजिस यानी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि उसकी कितनी फेसिस है, तो आप गिन सकते हो ना कि इसकी कितनी फेसिस है। हम कह सकते हो तो एक, ये दो, ये ऊपर की 3, ये 4, ये 5 और 6 फेसिस को हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। हम कंसिडर करें तो इसमें भी क्यूब और क्यूबॉइड को कंसिडर करें तो क्यूब हमें एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ से ले सकते हैं, हमारे फ्रिज में अवेलेबल है आइस क्यूब, उसको हम मेजर करेंगे नीचे ऊपर यानी टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बॉटम, ईच एंड एवरीथिंग हैविंग द फेसेस। तो ये जो फेस है वो फेस से हमें पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर शेप इज इनटू द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में कोई शेप है, वो कैसे पता चलता है, तो कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। आपको पता चल रहा है ना कि मैं ऐसे ही शेप आपको रख दूं तो दिस इज अ वन रेक्टेंगुलर शेप, ओके, दिस इज अ वन रेक्टेंगुलर शेप, but this rectangular shape how can we define? So this is a length, ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि this is a particular length, this is the width, ऐसा हम बोल सकते हैं this is a width। अब वही चीज को हम कंसिडर करें, this is maybe having the put into the front of you, then it should be considered as a one kinds of the shape, and this is a height, this is a width, everything we have to display। अब ये आपके सामने दिखाएंगे तो दैट इज नॉट कंसिडर एज ए 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कब बन सकता है, आप सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ ही मेजर कर सकते हो, और यदि आप उसकी लेंथ और हाइट ही कंसिडर कर सकते हो और विड्थ कंसिडर नहीं कर सकते हो, देन वी कांट वी से दैट इट्स एन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पता चल रहा है ना। तो 3 डायमेंशन तभी बनता है जो तीनों चीज जिसमें हो, 3D हो, डायमेंशन, डी का मतलब डायमेंशन, और वो 3 हो, 3 मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया।
तो ये चीज से हमें समझना था. सो फर्स्ट टुडे यू हैव टू कवर दिस टेबल फ्रॉम पेज नंबर 68. 68 पे जो पूरा टेबल है, शेप नेम, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ द शेप आपको ड्रॉ करके होमवर्क में भेजना है. पूरा टेबल समझ में आ गया? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो हम एक रैपिडली एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका 3 डायमेंशन का कंसेप्ट है वो माइंड में सेट हो जाए. यहाँ पे एक क्यूब है, आप देख सकते हो फिगर में. वैसे तो एनसीईआरटी की डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से है 110. यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर फेयर बुक. तो एक क्यूब इज ए क्यूबॉइड. एक क्यूब है वो एक क्यूबॉइड बन रहा है. मतलब a cube is a cuboid whose edges are all of equal length. उसकी edges जो है वो सभी equal length की है. तो A मतलब आपको ये fill in the blanks complete करना है. तो it has how many faces. पहले आप ये देख लो कि इसके faces कितनी है. आपको faces इस फिगर में 3 ही दिखेगी. देखो, एक सामने वाला, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला. आपको 3 ही फेस दिखती है, पर 3 दिखती है मतलब और भी 3 है. समझ में आ रहा है ना? ये 3 दिखती है मतलब उसके पीछे और भी 3 है. मतलब हमें यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट हैज 6 फेसेस. ओके, यदि हम 6 फेसेस मेजर कर सकते हैं ड्यू टू ओनली लेंथ, हाइट एंड विड्थ. समझ में आ गया ना? अभी आपको समझ में आएगा मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है. ईच फेस हैज हाउ मेनी एजेस? ईच फेस है, आपको एक ही फेस कंसीडर कर लो, सामने वाला ही कंसीडर करो. ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है ना, तो सामने वाला फेसिस ही कंसीडर करो. इसमें कितनी एजेस है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4. कितनी लाइन है? एजेस का मतलब कितनी लाइन है, कितनी लाइन सेगमेंट है. एक फेस में 4 है. तो ईच फेस हैज हाउ मेनी वर्टाइसेस? 4. ऑब्वियसली, क्योंकि पॉइंट्स कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं. वर्टाइसिस का मतलब पॉइंट्स, कॉर्नर. तो ईच फेसिस हैज हाउ मेनी वर्टाइसिस? 4. तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया. दूसरा, ए ट्राइंगुलर पिरामिड इज देयर एंड हैज अ ट्राइंगल इट्स बेस. बेस के ऊपर ये ट्राइंगल है, मतलब उसको हम कंसीडर कर लें. तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए द टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं, उसको ऐसे ही बेस पे रख दो जैसे कि क्यूब को क्यूबॉइड बना सकते हैं. वैसे ही हम पिरामिड को, ट्राइंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रॉन के रूप में उसको दिखा दे सकते हैं. तो अब आप देख सकते हो उसमें फेसिस कितनी है, 1 2 3 मुझे दिखाई दे रही है. तो यानी और भी 3 है, 1 है या 2 है. आप कह सकते हो इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल प्रिज्म के ऊपर से आप ये बता सकते हो कि और कितनी इसकी साइड होगी, 1 और 2. आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर इंटरेस्टिंग आंसर दे रहे हो. यानी याद रखना कि ये फेस आपको दिख रहे हैं राइट साइड के ऊपर, जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, उसके ऊपर से आपको बताना है फेसिस कितनी है, एजिस कितनी है और कॉर्नर्स कितने. ओके, तो ये भी आपके एग्जाम्पल्स के अंदर आप कंसिडर करेंगे. मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ अभी. फिर एक और क्वेश्चन है कि स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर एज इट्स बेस. एक स्क्वायर पिरामिड है आपके पास और स्क्वायर पिरामिड को हम कंसीडर कर रहे हो, उसको कितनी फेसिस, एजिस और कॉर्नर आप बता सकते हो, ये बताना है. फिर ए ट्राइंगुलर प्रिज्म है एंड द शेप ऑफ द कैलिडोस्कोप्स लाइक दैट एंड इट हैज ट्राइंगल एंड इट्स बेस. सो हाउ मेनी फेसिस, एजिस ऑफ एंड कॉर्नर ऑफ पर्टिकुलर शेप, दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड हियर. अब देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन हमने लिया था, उस क्वेश्चन का आंसर, इट हैज 6 फेसिस, 4 एजिस एंड 4 वर्टाइसेस. आप देख सकते हो पिक्चर में, साथ में देख के आप उस फिगर में और ब्लैंक्स की तरह आप देखेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि क्यों इसकी 6 फेज है. 3 आपको दिख रही है और 3 पीछे है. ईच फेस हैज 4 एजिस, क्योंकि हर एक फेस में 4 लाइन सेगमेंट्स एंड ईच फेस हैज 4 वर्टाइसेस, 4 पॉइंट्स भी है. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो.
जैसे कि हमने दूसरा अभी एग्जांपल्स में दिया आपको, तो इसमें फेसेस कितनी, 1 2 3, तीन दिख रही तो पीछे एक है। एजेस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 and 6 एजेस वी हैव टू कॉल दैट। एंड कॉर्नर्स हाउ मेनी, 1 2 3 and 4। वो कॉर्नर तो आपको सामने ही दिख रहा है। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे 3 डायमेंशन की तरह, तभी आपको पता चलेगा कि कॉर्नर के क्यों 4 पॉइंट्स। समझ में आ गया? तो दैट इज ऑल्सो बी। एंड लास्ट वन जो हमने फिगर देखा था, उसकी फेजेस कितनी है, एजेस कितनी है, एंड कॉर्नर। सो आई ऑल्सो पुटेड हियर द आंसर ऑल्सो। एंड लास्ट वन जो कैलिडोस्कोप देखा था, उसमें फेसिस कितनी है, एजेस कितनी है, और कॉर्नर्स कितने हैं। तो जो चीज आज मैंने बताई आपको, वो शेप के बारे में ही है, और शेप के बारे में ही आपको सभी शेप को ड्रॉ करके why it has only 5 faces। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ किया, आपको ऐसा ही शेप आपको आज के होमवर्क में करना है, और उस शेप के हर एक फेसिस को इंडिकेट करना है। मतलब 5 फेसिस है तो 5 फेस कहाँ पे है, 1 2। मैं ऊपर का एक पोर्शन दिखा सकता हूँ, दूसरे का दिखा सकता हूँ, तीसरे का दिखा सकता हूँ। जहां पे हम दिखा नहीं सकते वहां पे आपको मेंशन करना है कि दिस इज अ फोर्थ वन एंड दिस इज अ फिफ्थ वन। Okay, so that way you have to cover all the examples, that is I mentioned from 2 3 4 and 5. All the shapes you have to draw, and you also having the right the answer of faces, edges and corner, isn't it? So on the first day we just covered only those things that is introductory, and this is the three-dimensional shape. From tomorrow or next lectures we will discuss about the new chapter, that is the chapter number 13, symmetry. So I hope so that you all understands well what I am telling you in these first lectures, and I hope so that everyone, whatever the having the queries regarding the mathematics, you can ask me. And one more things, like a first term you cannot going thoroughly on the second term, but regularly you have to put up the whatever the presented by me in this video lecture. You have to study it out from your supplementary book, and then after, if you having any kinds of the doubt, then you can ask me. But never miss any videos of the mathematics, because whatever I give the homework, you compulsory you have to take these things is sincerely and complete it, and within the time period you have to submit me, because of it's also gives you to the marks of internal. So everyone knows that if you have the more regular regarding the all the video lectures as well as in WRT and the homework, then it will automatically gives you to the 10 marks of your regularity. So without missing, if you having any kinds of the doubt, then you can ask me. So today's homework, I mentioned whatever the things in today's video lecture, each and everything you have to submit as a homework. समझ में आ गया? जो चीज मैंने आज शुरू से लास्ट तक वीडियो में बताई, उसमें जितने क्वेश्चंस हमने बताए, वो शेप्स और सभी चीज 3 डायमेंशंस में आपको ड्रॉ करके एज इट इज, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि विच थिंग्स वी इंक्लूडेड इन टुडेज होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट वेरी सून इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल, you have to say fair to you. Thank you. Thank you very much.